नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मॉनसून की देरी खेती पर भारी पड़ रही है। खरीफ की बुआई पिछले साल के मुकाबले भले ही सिर्फ 5% कम हुई हो, लेकिन धान पिछले साल से 35% कम बोई गई है। दलहन खास करके तुअर की बुआई पिछले साल के मुकाबले 66% कम है। क्या है इसके कारण, क्या है समाधान, आगे जाकर कितनी ये इंप्रूव हो सकती है, इस बार क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस साल किस तरह के भाव रह सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी भी जुड़े हैं और सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे, क्योंकि जहां तक मानसून की बात है ऐसा माना जा रहा है कि इस साल में अब तक हम 23% डेफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि जून यहां पर डेफिशिएंसी के साथ ही बंद होगा। लेकिन मिस्टर जनमनी, जुलाई की शुरुआत यहां पर बेहतर होती हुई नजर आ रही है। एज ऑफ नाउ अगर आज की बात करें तो क्या है स्टेटस? नहीं, अभी जैसे जो मेकअप हुआ है जून में, आपने भी जिक्र किया होगा कि हमारा -56% था जून 14 तक, वो बढ़ के यानी इम्प्रूवमेंट इतना हुआ कि अभी जस्ट -23% है। और भी इम्प्रूव होगा क्योंकि मानसून काफी एक्टिव है, उसके फीचर्स सारा फेवरेबल है, काफी बहुत बड़ा क्वांटम जंप दिया भी मानसून प्रोग्रेस हुआ एंड रीच टू नेशनल कैपिटल दिल्ली। टुडे आल्सो द लेटेस्ट इज दैट there are area like it is going from Porbandar and then Ahmedabad also covered, and then coming to Rajasthan and further to Punjab also we have covered up to Firozpur, and there are a lot of rainfall today also. And if you see, monsoon is further improving, and June deficiency, the large deficiency was there in the first half, but by second half what is there till 20 today 27, it is almost 26 June, it is just -23%. So since the low pressure is right over the Odisha and Chhattisgarh area, it will give rain continuously next 3-4 days, and we will have a very heavy rainfall over mainly Madhya Pradesh, and then also Chhattisgarh and Vidarbha also, and Gujarat will pick up further. Also Bombay, Konkan will pick up from 27, also heavy rain. So in totality, and also the Himalayan region like Uttarakhand, we have like Rishikesh and Tehri, they have received more than 200 millimeters. So a lot of rain is getting realized. And if you see the main state like Uttar Pradesh, like Rajasthan, they are already getting rain for almost last 7 days. They were having rain from Biparjaya, and that rain also still continuing. So that's a good signal actually. And Maharashtra, which was hardly getting rain, now started getting rain last 3 days. So all these are indicating we are for the good monsoon. एक सवाल मेरा और ये भी है कि आपने ओवरऑल इंडिया तो बताया कि ज्यादातर कवर हम मानसून का देख चुके हैं और 23% की डेफिशिएंसी ओवरऑल इंडिया में है। अगर इसे डिवाइड किया जाए वेरियस ज्योग्राफिकल के हिसाब से तो फिर कैसे देखते हैं? सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर किस तरह? Definitely that is a concern. Northwest India is +46, whereas other part of India you have a deficient or rainfall departure is low. But that what was happened in the first half actually, and if you see the rain normals are very high for Konkan or Kerala or anything you take west coast. Still things are improving actually anyway. So if you see the showing operation or rain fed zone, that is mainly Rajasthan and Madhya Pradesh and Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh. But they are improving actually because the sowing start late actually, and like late June or something like that. So we have to look actually for the first week of the July, and then we can comment upon. Yeah. मिस्टर जनमनी, एक बात तो क्लियर है कि जून का महीना यहाँ पर डेफिशिएंसी के साथ बंद होगा, लेकिन क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई बेहतर रहेगा? Actually, we will be coming by June end, all these data. So you will definitely get our prediction for the July month also, but we have not come up with any prediction for July, honestly. Yeah. Yes. All right. मिस्टर जनमनी, एक फाइनल सवाल, अगर हम सेंट्रल इंडिया, सदर्न देखें, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट देखें, तो एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा कंसर्न या सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी कहाँ दिखती है? That is, as I told, deficiency, mainly the rainfall we have got, mainly, as I told you, the northwest India is all right, but if you go to the peninsular India or further to the south, the rainfall deficiency still remains because their normals are high. But as I told you, still we have 5 days. So it is too early to relate to anything actually. Okay.
पॉइंट टेकन जनमनी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो एज ऑफ नाउ थोड़ी सी बेहतरीन हुई है स्थिति यहाँ पर, लेकिन अभी भी 23% डेफिशिएंसी के साथ ओवरऑल भारत में बारिश है। 80% कंट्री एज ऑफ नाउ यहाँ पर कवर हो चुकी है। और जैसे वो कह रहे थे कि 1961 के बाद ये पहली बार है कि मुंबई और दिल्ली में एक साथ मानसून का ऑनसेट होता हुआ नजर आया। आपको ये भी याद दिला दें कि मुंबई में 2019 के बाद हमने देखा है कि इतना डिलेड मानसून ऑनसेट होता हुआ दिखा है। ऑफकोर्स अगले कुछ दिन यहाँ पर बेहतर रह सकते हैं वो होप्स के साथ यहाँ पर काम है। लेकिन जहां तक बुआई के नंबर्स हैं वो एज ऑफ नाउ बहुत स्ट्रांग नहीं है। एंड बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ हैं। हिमांशु, अगर पैडी पर एज ऑफ नाउ नजर डालें और ये जून एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर देखने को मिला है और धान की बुआई एज ऑफ नाउ 35-37% पिछले साल के कंपैरिजन में कमजोर है, आप ये नंबर्स कैसे देखते हैं? मनीषा जी, ये बात आपको अगर याद होगा हमने पहले भी की थी कि जो ईयर टू ईयर बेंचमार्किंग हो रही है ये काफी रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो मॉनसून है थोड़े से डिलेड चल ही रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। हालांकि जब हम कंपेयर करते हैं एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डेटा है तो देयर इज अ क्लाइमेट शिफ्ट विच वी सी एंड ये जो शॉर्टफॉल है ये हमेशा हमको कवर अप होता दिखता है। रबी में भी याद होगा हमने बात की थी कि 18-19% का शॉर्टफॉल है, बट आज इवेंचुअली जब आउटपुट आया तो कोई हमको शॉर्टफॉल नहीं मिला। अकॉर्डिंगली अभी खरीफ सीजन में भी मुझे नहीं लगता कोई किसी भी प्रकार की शॉर्टफॉल हम देखेंगे। आई थिंक 118 से 120 लाख टन के आसपास का हमारा आराम से प्रोडक्शन होना चाहिए पैडी का। आई डोंट सी एनी कंसर्न्स ऑन दैट साइड। तो आपको कब तक लगता है कि ये नंबर्स थोड़े से बेटर होते हुए नजर आएंगे? एंड आई एब्सोल्युटली गेट योर पॉइंट हिमांशु कि ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हम नंबर्स के लिहाज से यहाँ पर बात करते हैं, पर हम मोस्टली देखते ही हैं कि ये नंबर्स अपने आप कैचअप कर ही लेते हैं। कब तक आपको लगता है कि एक ज्यादा पैरिटी और एक बेहतर समय हो सकता है इन नंबर्स को रिव्यू करने का? बाय मिड ऑफ जुलाई यू वुड सी, and I think the better parameter to judge this would be the acres under cultivation. I don't think कि उसमें इतनी गिरावट है या कोई भी गिरावट है। और स्पेशली यहाँ पर जब हम इलेक्शन ईयर्स देख रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के लिए अच्छी न्यूज आती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बम्पर क्रॉप इन दिस खरीफ सीजन irrespective of what the sowing is as of now. All right, the point is well taken. Absolutely इलेक्शन ईयर है, कुछ गलत यहाँ पर जाने की उम्मीद कम ही है। एज ऑफ नाउ जहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी का पता है, सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो, फर्टिलाइजर्स की हो, इवन पावर फॉर दैट मैटर, ज्यादातर हिस्सों से यही सुनने को मिला है कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर सभी चीजों की पर्याप्त है। और जैसे हिमांशु कह रहे हैं कि मिड जुलाई तक यहाँ पर नंबर्स देखने चाहिए। JLVLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। विवेक, आप भी क्या कहेंगे? क्योंकि जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं और बाजार को ऐसा लगा था कि तुअर की बुआई बहुत झटपट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो हम नंबर्स यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं और ये पिछले साल के कंपैरिजन के हिसाब से हैं, 66% का डिक्लाइन तुअर में, 31% का डिक्लाइन उड़द में एज ऑफ नाउ देखने को मिला है। किन एरियाज में ये पिछड़ा हुआ है और कब तक पिकअप होता हुआ दिखेगा? नॉर्मली जैसे अभी हमारे पहले किसी वक्ता ने बोला कि रेन जो है बहुत तेजी से रिकवर करती है और मानसून लगातार डिले होते हैं और बाद में वो रिकवर कर जाते हैं। तो इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग प्रेडिक्ट की इस बार क्रॉप कम होगी। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्रॉप कम है। और जो बड़ी चिंता का विषय है कि अफ्रीका में भी जो मेरे एक मित्र हैं जो वहाँ पे सर्वे कर रहे थे और वहाँ से भी बहुत उत्साहजनक खबरें नहीं थी। तो इम्पोर्ट साइड से भी गवर्नमेंट को थोड़ा कंसर्न करना पड़ेगा। वहाँ पे भी क्रॉप थोड़ी डिले है, वहाँ पे भी थोड़ा सूखा है। तंजानिया में थोड़ा क्रॉप सर्वे हुआ था, जो इनिशियल क्रॉप सर्वे बोलना चाहिए, तो वहाँ से भी चिंता का विषय है। और तुअर शॉर्ट है यहाँ पे इंडिया में, तो दोनों के मिले जुले असर के हिसाब से तुअर में निश्चित रूप से बुआई का असर रहेगा और आने वाले टाइम पे तुअर के बाजार जो है थोड़े तेज बने रहेंगे। और जो रही बात बारिश की, मेरे ख्याल से जो सेंट्रल एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, महाराष्ट्र भी प्रभावित हुआ है। पर अभी 2-3 दिन से जो रिवाइव हुई है सिचुएशन, तो मेरे ख्याल से ये चीजें अपने को 15 जुलाई या जुलाई खत्म होते तक चीजें और क्लियर हो जाएंगी, जिसमें हम लोग ज्यादा साफ साफ देख सकेंगे कि क्रॉप में क्या सिचुएशन होने वाली है। सो विवेक, एज ऑफ नाउ जहां तक बुआई की बात है इंडियन मार्केट्स में, जस्ट गोइंग बाय द डेटा, हम नंबर्स यहां पर देख रहे हैं। 66% का डिक्लाइन तुअर, उड़द 31 और मूंग में 41% की यहां पर वृद्धि हुई है बुआई के इलाके में। क्या इस ट्रेंड में एज ऑफ नाउ कुछ रीडेबल है या फिर आपको लगता है कि अभी 15 दिन के बाद ही देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मनीषा जी कि वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। क्योंकि चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि वो जैसे भी जो हमारे प्रवक्ता थे
मौसम विभाग वाले, उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। 40-60% था और फिर 23% बचा। तो इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, बट उसके बावजूद, कितने भी कवर होने के बावजूद डिफिशिएंट बहुत बड़ा है। तो तुअर का बाजार निश्चित रूप से टाइट रहेगा, शॉर्टेज थोड़ी बनी रहेंगी, और इंपोर्ट के जो गवर्नमेंट को है वहां पे थोड़ा कंसर्न करना चाहिए। तंजानिया गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट से अगर वो कुछ डायरेक्ट बात कर सके या प्रोक्योरमेंट पे कुछ कर सके तो सप्लाई साइड पे यहाँ पे थोड़ा अपने को एक सहूलियत होगी। अदरवाइज सिचुएशन तो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। इनिशियल डेज यहाँ पर थोड़े से कंसर्निंग है, लेकिन जैसे कहा गया कि अगले 15-20 दिन इंतजार जरूर करना चाहिए। ज्यादातर जो आंकड़े हैं वो वैसे भी बाय मिड जुलाई ही यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आते हैं। जिस तरह का डिले यहाँ पर विवेक देखने को मिला है, आपको लगता है तुअर एज ऑफ नाउ क्या चल रही है, अगले 15-20 दिन यहाँ पर क्या रुझान रह सकता है? देखिए, अभी तुअर पिछले कुछ दिनों में बाजार बहुत ऊपर थे और करेक्शन उनमें आया है। और कल एनएफसी ने कुछ टेंडर किया था, वो इम्पोर्टेड तुअर खरीदने वाले थे। बाद में गवर्नमेंट ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको रोक दिया, ताकि बाजार जो स्टेबल है बाजार फिर से स्पार्क ना करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार थोड़े से अभी नरम रहेंगे, और जो ट्रेडर थे सब प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, मिल ओनर भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और उसके बावजूद उतनी ग्राहकी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण, मानसून डिले होने के कारण ग्राहकी का भी अभाव है। तो बाजार तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़े रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म पे अगर ये चीजें बनी रही तो बाजार निश्चित रूप से बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अभी एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन वाली स्थिति है, लेकिन बारिश के ऊपर और बुआई के नंबर्स पर यहाँ पर नजर बनी रहेगी, और उसी के हिसाब से फिलहाल यहाँ पर मार्केट चलती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जी एंड विवेक साथ जुड़ने के लिए, और उन दोनों ही इंपॉर्टेंट फसलों पर अपनी राय भी देने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले वंदना, आपका व्यू लेना चाहेंगे जिन फसलों पर हमने यहाँ पर बात की है, अगर आपने कोई ट्रेंड रीडिंग वहां की हो? जी मनीषा, दो कैटेगरी है। मुझे लग रहा है कि पैडी में थोड़ा सा डिलेड होगा। नॉर्मली इन जनरल 31 जुलाई तक यहाँ पे सोइंग हो जाती थी, लेकिन पैडी में है कि 15-20 डेज तो उसकी सैपलिंग में लगता है। तो अभी जब यहाँ पे मानसून आया है तो 15-20 डेज सैपलिंग में लगेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार 31 जुलाई तक सोइंग जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। हो सकता है कि हम 1 अगस्त तक भी यहाँ पे देखें कि सोइंग जो है वो कंप्लीट हो। तो डेटा आने में यहाँ पे ज्यादा मतलब कि टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नॉर्मल ईयर जो डेटा आते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पल्सेस में यहाँ पे कवर हो पाएगा। और इस बार जो कंसर्न है ये ग्लोबल कंसर्न है एल नीनो का। तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मार्केट में जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे टाइट हो सकता है, और नहीं भी हो तो एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, मेजर गवर्नमेंट है, वो क्रिएट करके चलना चाहेगी। एब्सोल्युटली, क्लियरली चिंताएं हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। और जुलाई का महीना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बारिश के लिहाज से, बुआई के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह के सेंस बनती हैं वहां से भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं ही, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। धान और दालों की बात तो हमने की ही है, लेकिन वंदना, अगर ओवरऑल कमोडिटीज में एग्री स्पेस को देखा जाए तो आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? जी मनीषा, हॉट कमोडिटी है यहाँ पे। जीरा लग रहा है कि सर्किट्स में ये ट्रेड हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड है। मैं यहाँ पे इसमें बाइंग रिकमेंड ही करना चाहूंगी। 57,800 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 59,000 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हम लगा के चल सकते हैं 57,300 का। लेकिन इसी काउंटर में दूसरी कमोडिटी है टर्मरिक स्पाइसेस में। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक ब्रीफ करेक्शन आ सकता है। यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है 9250 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। 9,000 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 9300 का। और मॉनसून के न्यूज के साथ साथ हम लोगों ने ग्वार काउंटर में भी एक फॉल आता हुआ देखा है। तो ग्वारगम में यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी 10,100 पे। टारगेट होगा 9,800 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,250 का। तो जीरा, हीरा और बाकी सब चीजों में बिकवाली, यहाँ पर वंदना आपको राय दे रही हैं। प्रीतम, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। सोने चांदी में पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या राय है, क्योंकि पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद कुछ संभले तो हैं, लेकिन क्या आप खरीदने की राय देंगे? देखिए मनीषा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल्स पे तो आके खड़ा हो गया था गोल्ड सिल्वर है, वहां से थोड़ी बहुत वैल्यू बैंक आई थी। और वीकेंड में जो बची कुची डाउट था वो तो ब्यूटन एंड उसके डिट्रैक्टर्स ने फुलफिल कर दिया है। वाइल वो जो रिवॉल्ट था वो कहीं ना कहीं स्टेम आउट हो चुका है, पर एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का क्रिएशन उन्होंने कर दिया है, उसी का बेनिफिट गोल्ड को आ चुका है।
एंड इसलिए गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चलनी चाहिए। गोल्ड 58,400 लेवल पे आता है तो एक बार बाय करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगेंगे 58,200 और टारगेट रहेगा 58,650 का। मेरे को रनअवे रैली नहीं दिखता है, बट बाय ऑन डिप्स इज अ डिसेंट स्ट्रेटेजी एक टाइट रेंज में खेलने के लिए। रही बात सिल्वर में, सिमिलरली सिल्वर में भी इसी का ही बेनिफिट है। 68,800 के लेवल पे आता है तो बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 68,400 का, टारगेट प्राइस रहेगा 69,300 का। साथ में क्रूड जो कि पिछले हफ्ते 4% गिरा, आज थोड़ा सा संभला, यहाँ पर क्या राय है? सो क्रूड में भी मुझे लग रहा है उसी का ही बेनिफिट है। ऑल्दो ओपेक ने भी आके थोड़ा डिमांड इंक्रीज का बात किया है, पर वो एक ही चीज है कि मिठाई वाले को पूछोगे कि मिठाई का डिमांड बढ़ेगा तो वो बोलेंगे, बट उसको साइड में रखें तो दो चीजें हैं फैक्टर। वन, ऑब्वियसली इनको लगता है कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है रशिया में उसमें कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ सकता है और उसका बेनिफिट क्रूड के प्राइसेस को मिला है। साथ ही साथ हमने देखा था ह्यूज इन्वेंट्री ड्रॉडाउन था लास्ट टाइम जो रिपोर्ट्स आए थे। एंड समर सीजन जो ट्रेडिशनल ड्राइविंग सीजन है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट देंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस को, बट वो भी एक रेंज में ट्रेड करेंगे। सो दी क्रूड हमारे हिसाब से 56-80 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 56-40 का और टारगेट प्राइस रहेगा 57-40 का। ऑलराइट, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में, एनर्जी में, और मेटल्स में कोई टॉपिक? कॉपर कॉपर फिर भी थोड़ा कॉशियसली करेंगे, फूक के पिएंगे चाहे अपनी। तो कॉपर यदि 722 के लेवल को क्रॉस करता है कंफर्टेबली तभी हम लोग लॉन्ग क्रिएट करने की सजेशन देंगे आपको। एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 718 का और टारगेट प्राइस रहेगा 727 का। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर क्रॉस आती हुई। वंदना, आपकी भी कोई नॉन एग्रो में अगर टॉपिक एक हो तो क्या करेंगी? मुझे लग रहा है कि सिल्वर बाई करना चाहिए। मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड का है तो 69,200 ये एक लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। 70,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 68,800 का। ऑलराइट, चांदी ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली ऑलरेडी देख ली है और यहाँ से खरीदारी की राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से आती हुई। तो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर देखें तो आज चांदी में यहाँ पर निकल के आती है ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन खरीदारी की राय यहाँ से भी। बहुत शुक्रिया प्रीतम, वंदना दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।